تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد ضلع انتظامیہ کی جانب سے پی ٹی آئی کے جلسہ منتظمین کو انتباہی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ روٹ کی خلاف ورزی کر کے آنے والے شرکا کا پولیس پر شدید پتھراؤ اور پتھراؤ سے ایس ایس پی سیف سٹی اور پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کا ایسا بتانا ہے۔ مظاہرین کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کا ایسا بتانا ہے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ روٹ کی خلاف ورزی کر کے آنے والے شرکا کا پولیس پر شدید پتھراؤ۔ ایک روٹ مختص کیا گیا تھا کہ کس روٹ سے جو ہے وہ شرکا سنگجانی کے مقام پر پہنچ سکیں گے، لیکن اس روٹ کی خلاف ورزی کی گئی اور آپ کو یہ اپڈیٹ کرتے چلیں کہ خلاف ورزی کر کے آنے والے شرکا نے پولیس پر شدید پتھراؤ کیا ہے۔ پتھراؤ سے ایس ایس پی سیف سٹی اور پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کا ایسا بتانا ہے کہ مظاہرین کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد ضلع انتظامیہ کی جانب سے پی ٹی آئی کے جلسہ منتظمین کو انتباہی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے پی ٹی آئی اسلام آباد کے صدر عامر مسعود مغل کو نوٹس جاری کیا ہے۔ اور ایک جو ڈیولپمنٹ جو تازہ خبر ہمیں موصول ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ روٹ کی خلاف ورزی کر کے آنے والے جلسے کے شرکا کا پولیس پر پتھراؤ اور پتھراؤ سے ایس ایس پی سیف سٹی اور پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں اور مظاہرین کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کا ایسا بتانا ہے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد ضلع انتظامیہ کی جانب سے پی ٹی آئی کے جلسہ منتظمین کو انتباہی نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے پی ٹی آئی اسلام آباد کے صدر عامر مسعود مغل کو نوٹس جاری کیا ہے۔ نوٹس میں تحریک انصاف کے جلسے میں طے شدہ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ جلسے کا وقت شام 4 بجے سے لے کے 7 بجے تک کا تھا اور ابھی جو خبر موصول ہوئی ہے جو اس میں ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ دیکھی گئی ہے کہ روٹ کی خلاف ورزی کر کے آنے والے جلسے کے شرکا کا پولیس پر پتھراؤ اور پتھراؤ سے ایس ایس پی سیف سٹی اور پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کا ایسا بتانا ہے کہ مظاہرین کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ یاد رہے کہ ایک روٹ مختص کیا گیا تھا کہ اس روٹ سے گزرتے ہوئے جو شرکا ہے وہ سنگجانی کے مقام پر جو پی ٹی آئی کا جلسہ ہے وہاں پہنچ سکیں گے، لیکن اس روٹ کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور جو شرکا ہیں انہوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا ہے اور پتھراؤ سے ایس ایس پی سیف سٹی اور پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کا ایسا بتانا ہے۔ مظاہرین کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کا ایسا بتانا ہے۔ تو یاد رہے کہ این او سی کے مطابق جو پی ٹی آئی کو وقت دیا گیا تھا جلسے کا وہ تھا شام 4 بجے سے 7 بجے تک کا اور روٹ مختص کیے گئے تھے۔ جو اسلام آباد کے مختلف روٹس ہیں وہ بتائے گئے تھے کہ یہاں سے شرکا گزر سکتے ہیں، سنگجانی کے مقام پر جو جلسہ سجایا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے وہاں پر جا سکتے ہیں، لیکن ان روٹس کی خلاف ورزی کی گئی اور ہم نے دیکھا کہ پتھراؤ سے ایس ایس پی سیف سٹی اور پولیس اہلکار جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کا ایسا بتانا ہے روٹ کی خلاف ورزی کر کے آنے والوں نے جو ہے وہ پولیس پر پتھراؤ کیا ہے۔ ایس ایس پی سیف سٹی اور متعدد پولیس اہلکار جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس پر پتھراؤ کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی بھی جاری ہے۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کا ایسا بتانا ہے۔ 26 نمبر چنگی پر پولیس اور پی ٹی آئی کارکنان آمنے سامنے۔ پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے پتھراؤ پر پولیس کی شیلنگ بھی سامنے آئی ہے اور آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ روٹ کی خلاف ورزی کر کے آنے والے شرکا کا پولیس پر پتھراؤ اور پتھراؤ سے ایس ایس پی سیف سٹی اور پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کا ایسا بتانا ہے۔ مظاہرین کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ 26 نمبر چنگی پر پولیس اور پی ٹی آئی کارکنان آمنے سامنے۔ یہ کچھ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے پتھراؤ پولیس کی طرف سے شیلنگ کی گئی ہے۔ روٹ کی خلاف ورزی کر کے آنے والے یہ شرکا ہیں جنہوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا ہے۔ یقینی طور پر جو روٹ مختص کیا گیا ہے جب اس کی خلاف ورزی کی گئی تو پولیس کی جانب سے انہیں روکا گیا، جس پر شرکا نے پولیس پر پتھراؤ کیا اور پتھراؤ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ 26 نمبر چنگی ہے جہاں پر پولیس اور پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں وہ آمنے سامنے ہیں۔ پی ٹی آئی کے کارکنان کی جانب سے پتھراؤ پر پولیس کی شیلنگ بھی دیکھنے میں آئی ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ روٹ کی خلاف ورزی کر کے آنے والے جو شرکا ہیں انہوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں سنگجانی کے مقام پر پی ٹی آئی نے اپنا جلسہ سجا رکھا تھا جس کا وقت تھا این او سی کے مطابق شام 4 بجے سے لے کر 7 بجے تک کا اور کچھ روٹس جو ہیں وہ مختص کیے گئے تھے کہ ان روٹس کو استعمال کرتے ہوئے جو شرکا ہیں جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں وہ جلسے کے مقام تک پہنچ سکیں گے، لیکن ان روٹس کی خلاف ورزی کی گئی اور جب پولیس نے روکا تو پی ٹی آئی کے کارکنان کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ کیا گیا اور پتھراؤ سے ایس ایس پی سیف سٹی اور پولیس اہلکار جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ مظاہرین کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ 26 نمبر چنگی بتائی جا رہی ہے جہاں پر پولیس اور پی ٹی آئی کارکنان
आमने सामने हैं। पीटीआई कारकुनान की जानिब से पथराव, जबकि पुलिस की जो है वो शेलिंग इस वक्त जारी है। और ये गालिबन मनाजिर जो है वफाकी दारुल हुकूमत के आप देख सकते हैं। और आपको बताएं कि पीटीआई कारकुनान के पथराव पर पुलिस की शेलिंग, इस्लामाबाद जिले के जलसा मुंतजमीन को इंतबाही नोटिस जारी कर दिया गया है। मुआहदे की शिक की खिलाफ वर्जी की सूरत में कानून के मुताबिक अमल किया जाएगा, नोटिस में ऐसा लिखा गया है। इसी पर बात करेंगे, नुमाइंदे खुसूसी कमरुल मुनव्वर ने हमें ज्वाइन किया है। कमर, अभी आपके पास ताज़ा तरीन इत्तलात क्या है? पथराव हो रहा है क्या शुरका की जानिब से पुलिस पर? जी बिल्कुल, अभी जो यहाँ पर सूरत हाल है उसमें जो रोड है वो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो गए थे, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक के एहलकार थे वो रोड में आ नहीं थे। कम पहलू उसमें जो पुलिस पर पथराव किया गया था इनमें, ताहम यहाँ पर जो मीडिया की कमर आप साथ रहेगा। डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। 7 बजे का वक्त था और ताहाल जो है वो शायद जलसा जारी है। एक तो इसकी तस्दीक कीजिएगा, दूसरा जो ये पुलिस पर पथराव हो रहा है, इस हवाले से क्या आपके पास ताज़ा तरीन इत्तलात है? देखिए, जहाँ पे भी कोई पथराव अगर हुआ है तो उस पर जरूर कानूनी कार्रवाई की गई है और लोगों को मुंतशिर किया गया है बाय टेकिंग एक्शन अगेंस्ट देम, नंबर 1। नंबर 2, जो जलसे की आपने बात की, जलसे में टाइम लिमिट 7 बजे लगाई गई थी। मैं जरूर बताता चलूं, ये टाइम लिमिट इसलिए लगाई गई थी कि ये जब जलसा होता है तो उसको सिक्योरिटी देना भी हमारे एज एन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की जिम्मेदारी है। और जब अंधेरा छाता है तो अंधेरे में जो कैपेसिटी है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की बजाय है कम होती है, एक नेचुरल सी बात है। तो इसीलिए वो टाइम लगाया गया था कि 7 बजे अंधेरा होता है तो 7 बजे से पहले आप खत्म करें ताकि सबकी सिक्योरिटी ठीक तरह से की जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं की गई, एज एन खत्म नहीं किया गया। 6 बजे एक एडवाइजरी जारी की गई थी मेरी तरफ से, जो इंतजामिया, जो जलसा इंतजामिया है उनको दे दी गई थी। उनको इंटीमेट किया गया था कि जी 1 घंटा रहता है, बराबर मेहरबानी इसको टाइम से कल्मिनेट करें, अदरवाइज पीनल कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ और 7 बजे दोबारा एक ऑर्डर निकला है, वो आप तमाम को मिल चुका होगा, जिसमें इस असेंबली को अनलॉफुल असेंबली भी डिक्लेयर किया जा चुका है और डायरेक्शन दी जा चुकी है तमाम कंसर्न को कि इसको मुंतशिर कराएं। और अकॉर्डिंगली जी एक्ट जो कल प्रोमोगेट हुआ है उसके तहत भी तमाम ना सिर्फ मैनेजमेंट कमेटी बल्कि वो लोग जिन्होंने इधर पार्टिसिपेट किया है और टाइम से उन्होंने वो इवैक्यूएट नहीं किया, वो जलसा गया, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ये ट्रायल चलेगा और जिसकी सजा 3 साल तक है। सही, ठीक है। इरफान साहब, मैं चाह रही हूँ कि जरा वो कानून भी आप बता दें, क्योंकि ये जो नोटिस है इसमें ये बाकायदा तौर पर लिखा गया कि मुआहदे के शिक की खिलाफ वर्जी की सूरत में अब कानून हरकत में आएगा। तो कानून किस तरीके से हरकत में आएगा? क्योंकि एक तो हमें ये भी इतलात मिली है कि 26 नंबर चुंगी है जहाँ पे पुलिस और शुरका आमने सामने है और यकीनन इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत इंतहाई सिक्योरिटी जोन इलाका है ये, तो अब क्या कानून हरकत में आ सकता है? जी, जो पब्लिक गैदरिंग का एक्ट कल प्रोमोगेट हुआ है उसका सेक्शन 8 बड़ा क्लियर है, जिसमें पनिशमेंट डिफाइन की गई है और वो जो एफआईआर होंगी वो अंडर दैट ट्राई की जाएंगी। सही, तो हम ये कह सकते हैं कि अब कोई गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है अगर मजीद ये पथराव का सिलसिला इसी तरह से जारी रहा? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे ये बताएगा कि इतलात ये भी हैं कि कुछ हमारे पुलिस एहलकार जो हैं वो जख्मी भी हुए हैं। जी, उसकी एग्जैक्ट डिटेल अभी तक नहीं आई मेरे पास। डेफिनेटली वो पथराव जरूर हुआ है और मुझे जरूर शक है कि अनफॉर्चुनेटली ये जरूर जख्मी हुए होंगे। जैसे इतला आती है तो आपके साथ जरूर शेयर की जाएगी। अच्छा, ये इस बात की तस्दीक कीजिएगा कि जलसा का खाली कराने के लिए नोटिस जारी हुआ है, इस पे कितना अमल दरामद हो चुका है? देखें जी, अमल दरामद अभी शुरू होगा, लोग वहाँ पहुंच चुके हैं और इनको दोबारा, चूंकि लोग वहाँ काफी जमा थे, उनको ये डायरेक्शन दी गई है कि अब ये अनलॉफुल असेंबली है, इसको बराबर पानी खाली करें और इन तमाम के खिलाफ एफआईआर भी रजिस्टर हो रही है। सही है, और अगर शुरका की जानिब से कोई मज़ाहमत की जाती है तो फिर उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएंगी? आएगा जी, बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ठीक है, बेहद शुक्रिया। डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पर ये बताया है कि जो जलसा गाह है उसको खाली कराने के लिए जो लोग हैं वहाँ पर मौजूद हैं उनको वहाँ से निकालने के लिए टीमें पहुँच गई हैं और अगर उनकी जानिब से मज़ाहमत की जाती है तो फिर गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जाएंगी। जलसा 7 बजे तक ख़त्म करना था लेकिन जो है वो नहीं ख़त्म किया गया। जलसा गाह खाली कराने के लिए मुंतज़मीन को एक और नोटिस जारी किया गया है और जो है वो 7 बजे के वक्त के बाद भी हमने देखा कि जलसा जो है वो जारी रहा और इस हवाले से डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये खिलाफ वर्जी की गई है एनओसी की और अब कानून हरकत में आएगा और कानूनी तौर पर अब इस मामले को देखेंगे। याद रहे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पीटीआई इस्लामाबाद के सदर आमिर मसूद मुगल को नोटिस जारी किया है और ये वो नोटिस है जो कि डीसी इस्लामाबाद की ट्वीट के बाद जारी किया गया है। इससे पहले हमने आपको अपडेट किया था कि डीसी इस्लामाबाद ने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर
एक ट्वीट किया था और उन्होंने ये लिखा था कि 7 बजे का वक्त है तो लिहाजा 7 बजे जलसा ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन जलसा मुकर्ररा वक्त के बाद भी जारी रहा है और उसके बाद एक इंतबाही नोटिस जारी होता है और उस नोटिस में तहरीक इंसाफ के जलसे में तयशुदा कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जियों की वाज़ेह तौर पर निशानदही की गई है। वो जो नोटिस जारी हुआ था समा के स्क्रीन पर हमने आपको दिखाया। नोटिस में ये बाकायदा तौर पर लिखा गया था कि जलसे के इजाज़तनामे में दर्ज SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएं, तयशुदा वक्त पर जलसा खत्म करने की शर्त पर अमल दरामद करना इंतहाई ज़रूरी है, मुआहदे की शिक की खिलाफ वर्जी की सूरत में कानून हरकत में आएगा। और अब जब DC इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन हमसे बात कर रहे थे, समा से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि अगर जो जलसा गाह में मौजूद शुरका हैं उनकी जानिब से मज़ाहमत सामने आती है या वो इनकारी नजर आते हैं कि वो इस जगह से नहीं जाएंगे तो फिर गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। और साथ ही साथ ये भी जो है वो इतलात आ रही थी कि इस्लामाबाद में चूंकि संगजानी के मकाम तक पहुंचने के लिए रूट्स मुख्तस किए गए थे और उस रूट की खिलाफ वर्जी पर जो है शुरका ने पुलिस पर पथराव किया। कमरुल मुनव्वर से एक दफ़ा फिर से बात करेंगे। कमर, आप बताएगा 26 नंबर चुंगी बताई जा रही है जहां पर पुलिस और PTI के कारकुन आमने सामने थे, अभी सूरत हाल जूं की तू है या ये पथराव का सिलसिला रुका है, शालिंग का सिलसिला रुका है? ठीक है कमर, आपसे दोबारा राबता करते हैं, गालिबन आपकी आवाज़ हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, तो आपको ये अपडेट कर रहे हैं कि PTI कारकुनान के पथराव पर पुलिस की शालिंग देखने में आई है और इस्लामाबाद ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से PTI के जलसा मुंतज़मीन को इंतबाही नोटिस जारी कर दिया गया है और ये कहा गया है कि मुआहदे की शिक की खिलाफ वर्जियों पर जो है कानून हरकत में आएगा। और 26 नंबर चुंगी है जहाँ पर पुलिस और PTI के कारकुन आमने सामने हमें नजर आए। मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर पथराव का सिलसिला जारी है और DC इस्लामाबाद का कहना है कि अगर तो पुलिस पर पथराव किया गया है तो इस पर ज़रूर कानून हरकत में आएगा और सख्ती से इसका नोटिस लिया जाएगा। अभी जो है जलसागाह को खाली करवाने के लिए जो है वहाँ पर टीमें पहुँच गई हैं और जलसागाह को खाली करवाने के बाद अगर मज़ाहमत सामने आती है तो फिर गिरफ्तारियाँ भी अमल में आ सकती हैं। आपको बताते चलें कि आज संगजानी के मकाम पर PTI ने जलसे की इजाज़त ली थी और NOC जारी हुआ था जिसके मुताबिक जो जलसे का वक्त था वो शाम 4 बजे से 7 बजे तक का था और जलसा ख़त्म होने से गालिबन कोई आधा घंटा पहले DC इस्लामाबाद की जानिब से X पर यह पैगाम लिखा गया था कि मुकर्ररा वक्त पर जलसा ख़त्म किया जाए और उनकी जानिब से ये वार्न किया गया था कि अगर जलसा ख़त्म नहीं किया जाएगा तो फिर कानून हरकत में आएगा। और उसके बाद हमने देखा कि 7 बजे के बाद भी गालिबन PTI का जलसा इसी तरह से जारी रहा, जिसके बाद एक इंतबाही नोटिस जारी होता है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जो है ये नोटिस जारी किया इस्लामाबाद के PTI इस्लामाबाद के सदर आमिर मसूद मुगल को, जिसमें बाकायदा तौर पर यह लिखा गया था कि जलसे के इजाज़तनामे में दर्ज SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएं और मुआहदे की शिक की खिलाफ वर्जी की सूरत में अब कानून हरकत में आएगा। जलसा 7 बजे तक ख़त्म करना था मगर वक्त की पाबंदी नहीं की गई। DC इस्लामाबाद अभी कुछ देर पहले समा से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे, उनका ये कहना था कि जलसा का खाली करने के लिए मुंतज़मीन को एक और नोटिस भेज दिया गया है। जलसा का खाली नहीं हुई तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जलसा मुंतज़मीन को कार्रवाई से मुतालिक आगाह कर दिया गया है और रूट की खिलाफ वर्जी हुई है। संगजानी के मकाम पर पहुँचने के लिए इस्लामाबाद में मुख्तलिफ रूट्स मुख्तस किए गए थे और जो PTI के शरका थे उनको बताया गया था कि जलसागाह पहुँचने के लिए आपने इन सेलेक्टेड रूट्स को इस्तेमाल फर्जी हुई, पुलिस ने यकीनन उन्हें रोका होगा, तो जिस पर शरका की जानिब से पुलिस पर पथराव किया गया और इस पथराव के नतीजे में SSP सेफ सिटी और पुलिस एहलकार जो हैं वो जख्मी हुए हैं। मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर पथराव का सिलसिला जारी है, तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का ऐसा बताना है। 26 नंबर चुंगी इस्लामाबाद का ये एक इलाका जहां पर पुलिस और PTI के कारकुनान आमने सामने है। PTI कारकुनान के पथराव पर पुलिस ने शालिंग की है और इस्लामाबाद ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो PTI के जलसा मुंतज़मीन हैं उनको इंतबाही नोटिस जो है वो जारी हुआ है और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि अगर शरका की जानिब से मुज़ाहमत सामने आती है तो फिर गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं। DC इस्लामाबाद का अपनी गुफ्तगू में जो वो समा से कुछ देर पहले कर रहे थे उसमें उनका ये कहना था। आज PTI ने अपना जलसा सजा रखा है इस्लामाबाद में संगजानी के मकाम पर और इस हवाले से रूट्स कुछ मुख्तस किए गए थे चूँकि विफाकी दारुल हुकूमत है और हाई सिक्योरिटी जोन्स जो हैं, जो इस तरह के इलाके हैं जहाँ पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहती है, उनको महफूज बनाने के लिए कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे रूट्स जो हैं वो PTI के शुरका को बताए गए थे। अब उनकी खिलाफ वर्जी पर पुलिस का जो है वो पुलिस पर पथराव PTI के कारकुनान की जानिब से किया गया है। मुतादिद पुलिस एहलकार के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं और 26 नंबर चुंगी पर पुलिस और PTI कारकुन जो है वो आमने सामने हैं।
PTI कारकुनान के पथराव पर पुलिस की शेलिंग भी देखने में आई है। आज इस्लामाबाद में PTI का जलसा संगजानी के मकाम पर, जिसके हवाले से मुख्तलिफ रूट्स जो हैं वो मुख्तस किए गए थे और उसकी खिलाफ वर्जी की PTI के शुरका की जानिब से, जिस पर पुलिस ने यकीनन उन्हें रोका और उस पर PTI के शुरका ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। और बताया ये जा रहा है कि PTI कारकुनान के पथराव पर पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई है और पथराव पर जो है वो पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई है और SSP सेफ सिटी और मुतादिद पुलिस एहलकार जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। जलसा ख़त्म करने के लिए 7 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन जो है वो जलसा 7 बजे यानी मुकर्ररा वक्त पर ख़त्म नहीं हुआ और जो रूट्स मुख्तस किए गए थे उन रूट्स की खिलाफ वर्जी की गई और जब PTI के शुरका को रोका गया तो उन्होंने पुलिस पर किया पथराव और इसके नतीजे में SSP सेफ सिटी जो है वो ज़ख्मी हुए हैं और मुतादिद पुलिस एहलकार के ज़ख्मी होने की इत्तलात भी मिली हैं। तो आपको अपडेट करें कि इस्लामाबाद में PTI का जलसा और उस हवाले से NOC जो है वो जो जारी हुआ उसके मुताबिक इस जलसे का वक्त था शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का और इसकी खिलाफ वर्जी की गई, जिसके बाद इंतबाही नोटिस जारी होता है और इस नोटिस में तहरीक इंसाफ के जलसे में तयशुदा कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जियों की निशानदही की गई है। और इसके अलावा जो PTI के शुरका हैं उनकी जानिब से पुलिस पर पथराव किया गया और आपको अपडेट करें कि 26 नंबर चुंगी पर जलसे के शुरका ने तयशुदा रूट की खिलाफ वर्जी की, पुलिस का ऐसा बताना है। एहलकारों की जानिब से रोके जाने पर शुरका ने पथराव किया, तर्जुमान पुलिस का ऐसा बताना है। इंतजामिया ने मुंतजमीन को वक्त पर जलसा ख़त्म करने की पहली वार्निंग 6 बजे दी थी और इंतजामिया की जानिब से जलसा मुंतजमीन को दूसरी वार्निंग 7 बजे जारी हुई, तर्जुमान पुलिस का ऐसा बताना है। तो पहली वार्निंग जारी हुई थी 6 बजे और दूसरी वार्निंग दी गई 7 बजे। जो जलसा ख़त्म होना था वो 7 बजे होना था, चूँकि NOC के मुताबिक जलसे का जो वक्त था वो शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का था और इंतज़ामिया ने मुंतज़मीन को वक्त पर जलसा ख़त्म करने की पहली वार्निंग 6 बजे दी थी, तर्जुमान पुलिस का ऐसा बताना है। जबकि इंतज़ामिया की जानिब से जलसा मुंतज़मीन को दूसरी वार्निंग 7 बजे जारी हुई थी और 26 नंबर चुंगी जो है वहाँ पर पुलिस और PTI के शुरका आमने सामने, चूँकि तयशुदा जो रूट है उसकी खिलाफ वर्जी की गई और एहलकारों की जानिब से रोके जाने पर शुरका ने पथराव किया, तर्जुमान पुलिस का ऐसा बताना है। और उसके बाद जो है SSP सेफ सिटी और मुतादिद पुलिस एहलकारों के ज़ख्मी होने की भी इत्तलात सामने आई हैं। शुरका की जानिब से पथराव किया गया और पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई और पथराव का सिलसिला जारी रहा तो गिरफ्तारियां भी अमल में आ सकती हैं, DC इस्लामाबाद का ऐसा कहना है।